पीसी डेली एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्रीलिम्स थीमेटिक पीओआई की सीरीज हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट की थी। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। वी हैव स्टार्टेड विथ पॉलिटी, सो दिस इज द सेकंड थीम फ्रॉम दिस पॉलिटी सब्जेक्ट। पहला थीम था शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड प्रिएम्बल्स, और ये है दूसरा थीम हमारा फंडामेंटल राइट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। उसमें लिस्ट दी गई है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स है, और उसके बारे में कुछ प्रोविजंस दिए हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, कि आप कोर्ट में जा सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट करता है तो उसके लिए क्या रेमेडीज है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल लगभग एक क्वेश्चन इससे प्रीलिम्स में आता है, और पिछले 12 सालों में देखा जाए तो टोटल 11 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर थीम से आए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम, क्वेश्चंस देखेंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ द क्वेश्चंस, हाउ क्वेश्चन कुड हैव बीन आंसर्ड, एंड हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स। सो ये 2017 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेज्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो फंडामेंटल राइट है, इसमें क्या इनविसेज किया है, क्या कंसेप्चुअलाइज किया गया है। चार ऑप्शन दिए हैं। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ओके। अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये प्रोहिबिशन है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, थर्ड ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन है फैक्ट्रीज एंड माइंस में जो चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट रहता है उनका प्रोहिबिशन। तो अगर ठीक से देखा जाए, इफ यू हैव स्टडीड फंडामेंटल राइट्स, you would know that right against exploitation is separate right under article 23 and 24. आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में दो प्रोविजंस दिए गए हैं। तो वो दो कौन से प्रोविजन है, ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर ब्रॉडर व्यू में फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल आपको पता होते, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर इज आर्टिकल 23, which basically comes under right against exploitation, and untouchability is about, it is right of equality, so this will be part of from article number 14 to 19. So untouchability, protection of interest of minorities, this one is about minorities interest, which is specifically mentioned in article 29 to 30. So this is also not our answer. And the last is the factories, children in factories and men, this is article 24. So this is our correct statement. So we have number 1 and number 4 as our right statements. So right against exploitation basically is about article 23 and 24. Our right options, and we have option C, fear, we get our 1 and 4. So this is the way you have to approach the prelims PYQs. The explanation you need to read, you should get through it. Article 23 and 24. Article 23 prohibits traffic in human beings, and Article 24 employment of children. C is our answer. Next. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and their duties? This is our question, and we need to answer it from the conceptual point of view. This one is conceptual question. You should clearly know the distinction between rights and duties. You should know the definition of rights. What are rights and what are your duties? So before, like,
whatever knowledge we have, from that point of view we'll try to answer the question and try to eliminate the options, and after that in explanation we can see the correct definition and the explanation of it. So rights are correlative with duties. This seems positive. We'll keep it and read other options. Rights are personal and hence independent of societies and duties. So this is negative statement. If you see, rights cannot be personal and they cannot be independent of the society. So while you claim your rights, it should be aligned with the interest of the societies. You cannot have the rights that harms the interest of society. So this is not right. This is incorrect statement. Rights, not duties, are important for the advancement of the personality of the citizen. Duties, not rights, are important for the stability of the state. So these two statements are basically contradictory. Uh, they are saying that rights are not important. I mean, first statement is saying rights are important and duties are not important, and second statement is saying duties are important and rights are not important. So this cannot be right. It sounds very narrow. The only right option and only broad answer we can see is this: rights are correlative with duties. So basically, let me tell you, rights are claims of the citizens against the uh, other citizens, fellow citizens, against the state, against the government. So they are the claims, but even if they are claims, we need to understand that rights are correlative with duties. Whenever we claim our rights, it should align with our duties. Like if we are asking for rights, we should follow our duties as well. Right, but this one is on the same line of like 2017 में दो questions डायरेक्टली राइट्स के कंसेप्ट पे ही था. तो ये कह रहा है कि ऑप्शंस में देखिए करेक्ट बताइए. राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट सिटीजंस. ओके. राइट्स आर प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट. Rights are privileges of few citizens against the many. So uh, privileges is a wrong word. Rights are not privileges. They might be a claim, but they are not privileges. So privileges वाले दो ऑप्शन तो गए. आपको इसी तरह eliminate करना होगा. Whenever you have such kind of questions, you need to eliminate the wrong options, because when you see privileges, when we are जब हम rights claim कर रहे हैं तो वो हम equality के लिए claim कर रहे हैं, तो privileges का कोई उसमें संबंध नहीं. तो privileges तो गए. Rights are claims of state against citizens. Rights are claims of citizens against state. तो state के citizens के against claim कैसा हो सकता है? It should be the citizen against state. जो हमारे citizens हैं, हम लोग हैं, fellow citizens, हम state से जो rights मांग रहे हैं, यही होते हैं rights. This is our correct definition. So I'll suggest you should read the NCERTs of 11th and 12th in political theory. जो हमारा NCERT है, इसमें ये चीज़ें दी गई है. एक बार ठीक से रिवाइज कर लेंगे तो विल अंडरस्टैंड दिस concepts. आगे बढ़ते. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement? So ये what he is asking कि जो right to life and personal liberty है, ये पहले right to privacy, ये right to life and personal liberty का intrinsic part है. तो ये this this is a hint. ये डायरेक्टली तुम्हें नॉलेज बेस इन्होंने प्रोवाइड किया है कि राइट टू प्राइवेसी इज राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है. तो यू शुड टेक दिस हिंट वेरी केयरफुली. ऑप्शन देखते हैं. व्हाट सो क्वेश्चन इज व्हाट इट इज इम्प्लाइज करेक्टली. सो देखते हैं.
तो ये जो दिया है राइट टू लाइफ, ये पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल के और प्रोविजंस में है। तो ही इज आस्किंग इफ इट इज इन आर्टिकल 14 एंड अंडर प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट। तो आप सबको पता है, and if you don't know, you should read fundamental rights carefully. You will get to know that Article 14 is about right to equality. So this is not your answer. This one is like जो आर्टिकल 14 से 19 है, ये दोनों भी आर्टिकल 14 से 19 पे राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है। सो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है। 14 is about equality before law, 17 is about untouchability. So this is not right. What is Article 21? It is right to life and personal liberty. So this is our answer. Under Article 21, so जो हमारा 19 से 22 है, like 19, 20, 21, 22 are our right to freedom, and this one mentioned, that is right to life, is our Article 21. So even knowing, अगर आपको सिंपल सी चीज पता होती कि आर्टिकल 21 इज पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, यू शुड हैव, you would have able to answer this question. And आर्टिकल 24 जैसे हमने ऊपर देखा is about right to exploitation, तो ये भी नहीं, we get our answer. Let's move forward. ये आगे एक्सप्लेनेशन है। पुट्टुस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी का जो पुट्टुस्वामी का केस था, नाउ ये जो एक्सप्लेनेशन है आप ठीक से पढ़ लीजिए। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट में ये केस, पुट्टुस्वामी का केस था राइट टू प्राइवेसी का। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया था राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, it is the intrinsic part of right to life, and it is under article 21. So right to privacy is intrinsic part of right to life and liberty under article 21, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया है। दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर, यू विल गेट, आगे जाके आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से। सो ये यहाँ पे ही आप ध्यान में रखिए, पुट्टुस्वामी केस के बारे में, राइट टू प्राइवेसी के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में। यू विल अमेज्ड इन दिस वीडियो एट द एंड कि ये इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following categories of the fundamental rights incorporate protection against untouchability as a form of discrimination? So अभी कुछ ही समय पहले हमने 2017 का क्वेश्चन देखा जिसमें ये अनटचेबिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ था। सो अगर आपने 2017 का क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होता, उसके ऑप्शन में ऑप्शन को आपने ठीक से एनालाइज किया होता, तो आपको पता, आप 2020 का ये क्वेश्चन एकदम इजीली आंसर कर पाते, क्योंकि अनटचेबिलिटी एज ऑप्शन दिया था एंड इट वाज नॉट करेक्ट ऑप्शन। सो अनटचेबिलिटी का आर्टिकल, वैसे जैसे मैंने बताया, इट्स 17। सो दिस कम अंडर राइट टू इक्वेलिटी। एज वी नो, ऊपर के एक्सप्लेनेशन में भी पता है कि राइट टू 14 से राइट टू 18 तक इक्वेलिटी के राइट से, इतनी सी इंफॉर्मेशन भी इनफ थी ये क्वेश्चन आंसर करने को। देखते हैं ऑप्शन में, ये देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, इट इज द आर्टिकल 23 एंड 24। जैसे मैंने ऊपर बताया, राइट टू फ्रीडम क्या है, आर्टिकल 19 से 92, आर्टिकल 22। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आर्टिकल 32, एंड राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18। सो इतनी सी इंफॉर्मेशन, और स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी का है वो आर्टिकल 17 है। सो इवन दो इतनी सी इंफॉर्मेशन काफी थी कि आप ये 20 का क्वेश्चन आंसर कर पाते। और ये तो शुरुआत है, आगे यू विल सी हाउ easily you could answer the question just by PYQs, just by doing the PYQs. 6th question देखते हैं, legislation which confers on executive or the administrative authority and unguided and uncontrolled। तो ये सिर्फ घुमा फिरा के पूछा है, थोड़े से हेवी वर्ड्स है, बट अगर ठीक से पढ़े तो ये भी एकदम इजीली आंसरेबल है।
कैसे ये बताता हूँ। अ लेजिस्लेशन, तो हम उसको ब्रेक करते हैं। लेजिस्लेशन मतलब कायदा, confers executive or administrative authority and unguided uncontrolled discretionary power। तो बेसिकली एक कायदा जो अनकंट्रोल्ड पावर देता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ के लिए, वो क्या वॉयलेट करता है ये पूछा गया है। सो दिस इज क्लियरली अबाउट लॉ, अ लॉ which has become uncontrolled, which has become कारक कह सकते हैं हमको। एक लॉ है जो अन्य कारक बना है, जिसने एग्जीक्यूटिव को अनकंट्रोल्ड पावर दी है। तो ये किस आर्टिकल के बारे में है? तो वन बाय वन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यू विल आंसर, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट लॉ, अनकंट्रोल्ड लॉ। सो आपके दिमाग में शुड ट्रिगर कि ये कौन से फंडामेंटल राइट्स को रिलेट कर रहा है। तो इस बार उल्टा आते हैं, आर्टिकल 44 के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड दिस इज डीपीएस पे आर्टिकल, सो इसका कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 32 इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो दिस वन इज लिटिल बिट रिलेवेंट, बट ये आर्टिकल 32 को वायलेट नहीं कर रहा। एक लॉ है जो आर्बिट्री है। आर्टिकल 32 इज ऑल अबाउट रेमेडीज। तो आपको अगर आपका लॉ वायलेट हुआ है तो आपको कहाँ जाना है, तो ये भी नहीं है। आर्टिकल 22 इज अबाउट आवर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो दिस वन इज नॉट ऑल्सो आवर आंसर। अब देखते हैं आर्टिकल 14। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 comes under right to equality, equality before law and equal protection of law. Even knowing equality before law, you would have clearly understood and answered this question. So this article 14 is all about है कि कोई भी कायदे से ऊपर नहीं है। कोई भी कायदा अगर आर्बिट्री होता है तो वो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 वायलेट करता है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, यू शुड रीड दैट। ये देखिए, ये आया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। अभी तो ऊपर देखा हमने आर्टिकल 21 है, पुट्टू स्वामी के सुप्रीम कोर्ट। याद आया, याद आ रही है चीजें, रिकॉल हो रहा है। और मजा, और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाओ, रुको दिखाता हूँ। थोड़ा आगे जाते हैं, बीच में के जो क्वेश्चन है वो बाद में देख करते हैं। ये देखिए, ये देखिए क्या है, लेटेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी। ढेर सारी किताबें पढ़ ली, पूरा फंडामेंटल राइट्स को एक महीना भर रट्टा मार लिया, और ये देखिए यूपीएससी क्या पूछ रहा है। जस्ट रिपीटिंग अ पीवाईक्यू, सीधा क्या है राइट टू प्राइवेसी बताओ। राइट टू प्राइवेसी 11 क्वेश्चन है यूपीएससी के, जिसमें तीन से चार बार तो राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू का। ये सीरीज स्टार्ट करने का मेरा इंटेंशन ही यही है कि यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ पीवाईक्यूज वर्क, हाउ पीवाईक्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। बुक से बुक पढ़े जा रहे हैं और नोट से नोट निकाले जा रहे हैं, लेकिन आंसर क्वेश्चन कहाँ से आंसर हो रहे हैं? यही से हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर। नीचे एक्सप्लेनेशन है, वो भी पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 7 तक आए थे। 8वां क्वेश्चन, with reference to writs issued by the courts in India, consider the following statements.
रिट्स के बारे में क्वेश्चन है। तो रिट्स आर्टिकल 32 में 5 रिट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, जो हमारा 32 का आर्टिकल है। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट करे तो आपके पास ऑप्शन रहता है, या आप आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और उसके लिए 5 रिट्स दी गई है, जो आप जो पेटिशन रिट पेटिशन होता है वो आप फाइल कर सकते हैं। 5 प्रकार के रिट्स होते हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडामस, सेरेटोरी एंड क्यू वारंटो। तो आपको वो 5 रिट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में ऑप्शन में पिछली बार दिया गया था कि 32 है। तो ऑप्शन में अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का आर्टिकल आ रहा है तो यू शुड हैव रीड अबाउट दैट, और आप तब वहाँ से उसको रीड कर लेते तो यू वुड बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 22। सो 5 रीड्स है। तो क्वेश्चन देखते हैं। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मैंडेमस के बारे में, तो ये मैंडेमस के 2 स्टेटमेंट है और क्यू वारंटी का एक स्टेटमेंट है। तो इसे ये दोनों मिला के क्वेश्चन पूछा है। अगली बार दे कैन आस्क विथ अदर, लाइक 5 रीड्स है तो कौन से भी 2 का कॉम्बिनेशन, या फिर 3 का भी कॉम्बिनेशन, या फिर कोई सिंगल रीड्स के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। तो यू शुड बी रेडी, यू शुड नो ऑल 5 रीड्स एंड यू शुड नो कि उसमें उसकी लिमिटेशंस क्या है और वो किसके अगेंस्ट हम कर सकते हैं। तो मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। तो ये सही है। आगे एक्सप्लेनेशन में आई टेल यू। पहले आई थिंक आई एक्सप्लेन व्हाट इज मैंडेमस, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आई एक्सप्लेन फर्स्ट। सो मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, वी कमांड। तो ये कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल को बताता है whenever a public official fail to perform his duties or refuse to perform his duties, Supreme Court tell this. Supreme Court asks public official to perform his duty. So इसका literal meaning है we command. Mandamus is equal to me command. और एक और चीज है, it can be issued against public body, corporate, inferior court. So public official, public body, corporation, inferior court, tribunal और गवर्नमेंट, इन सब के अगेंस्ट कोर्ट ये कर सकता है इशू मैंडेमस। तो किन के खिलाफ कर नहीं सकता ये भी देख लेते हैं। अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट और इंडिविजुअल बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन हो तो उनके खिलाफ भी नहीं कर सकते। एक आधा कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स करने के लिए भी नहीं कर सकते अगर उसमें स्टैट्यूटरी फोर्स ना हो। अगर किसी की ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है और मैंडेटरी नहीं हो तो नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट नहीं कर सकते, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि हम मैंडेमस किन के खिलाफ कर सकते हैं और किन के खिलाफ नहीं कर सकते। तो मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। तो ये सही है। पहला पॉइंट था कि किसके खिलाफ नहीं करना है, तो ये सही है। पहला ही पॉइंट था किसके खिलाफ नहीं करना है। इट विल नॉट अगेंस्ट कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। तो ये सही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ मैंडेमस हम ला सकते हैं। अभी क्यू वारंटो देखते हैं। क्यू वारंटो को भी एक्सप्लेनेशन पहले देखेंगे, बिकॉज दिस वन इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। क्यू वारंटो का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट it is issued by the court to inquire into legality of the claim of person or public office। तो कोर्ट पब्लिक ऑफिस से पूछता है कि आपने किस अथॉरिटी से ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है, उसकी लीगैलिटी कोर्ट इंक्वायर करता है। तो ये प्रिवेंट करता है कि पब्लिक ऑफिस
का जो हमारा पब्लिक ऑफिशियल है, अगर कोई इलीगल वो चीजें करते हैं तो वो इसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। इट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर। तो जो पब्लिक ऑफिस रहता है हमारा, उनके ही खिलाफ हम सिर्फ उसको कर सकते हैं। जो स्टैट्यूट मतलब किसी लॉ से क्रिएट किया गया हो। इट कैन नॉट बी, हाँ मिनिस्ट्रियल तो एग्जीक्यूटिव हो गया और प्राइवेट ऑफिस नहीं है, तो मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ नहीं कर सकते। क्लियरली मेंशन है, स्टैट्यूट होना चाहिए, तो ये लॉ से बनी हुई जो बॉडीज है, पब्लिक बॉडीज, वहां पे हम कर सकते हैं। एनी इंटरेस्टेड पर्सन, एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट, एनी इंटरेस्टेड पर्सन, कोई भी जा सकता है, नेसेसरीली नॉट द नेसेसरी एग्रीड पर्सन कैन सीक गवर्नमेंट। तो ऐसे एनीवन, कोई भी जा सकता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा स्टेटमेंट तीसरा राइट है या गलत। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर, तो ये सही है। जैसा हमने देखा कि कोई भी जा सकता है, तो पहला सही, तीसरा सही। सो दिस इज अवर राइट आंसर। याद रखिए 5 रीड्स है, ठीक से याद करना है। किसके खिलाफ है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वही से क्वेश्चन बनेगा। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? सो क्वेश्चन इज कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? तो दिस वन इज लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, and this is a clearly a conceptual question you should understand. For now you can eliminate the two options here. जो ऑप्शन बी है, प्रोसीजर established by law and equality before law, ये जो है ये टोटल डिफरेंट कंसेप्ट है। प्रोसीजर established लॉ इज अमेरिकन कंसेप्ट एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये एप्लीकेबल नहीं हो रही थी, इसलिए ही मेनका गांधी केस में हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मेंशन किया था और इसको रिकॉग्नाइज किया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो हमारे लॉज है वो आर्बिट्रेरीनेस और इरेशनलिटी से फ्री हो, व्हेनेवर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लाइक प्रोसीजर फॉलो करते समय ये जो आर्बिट्रेरीनेस और इरेशनलिटी आती है, उनको हमें रिमूव करना था। ये सुप्रीम कोर्ट के केस में बताया था और ये नेचुरल जस्टिस का ही एक पार्ट है। दिस वन इज a part of principle of natural justice, and this is a factual question. Direct, uh, read about it, read about the explanation, and remember that this one is mentioned in article 21, Menka Gandhi case, and it is a part of principle of natural justice. So this one is our correct answer. Let's move forward. Under which of the following articles of the constitution, ये हमने देखा, right to privacy, Puttaswamy case. A writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Court. So मैंडामस के बारे में पूछा, क्यू वारंटी के बारे में पूछा, और अब आया है नंबर प्रोहिबिशन का। सो इसके बाद दो रिट्स बची है, हैबियस कॉर्पस और सेरिटोरी। सो बिफोर, लाइक ये तीन तो आपको आनी है, और उसके बाद हैबियस कॉर्पस और सेरिटोरी, ये जो बाकी रिट्स है, दो बाकी रिट्स पढ़ लीजिए, शायद अगले साल इससे क्वेश्चन आ जाए। तो प्रोहिबिशन के बारे में पूछा है, तो प्रोहिबिशन होता क्या है बेसिकली? ऑप्शन में देखते, इशूड बाय कोर्ट टू प्रोहिबिट द लोअर कोर्ट्स। सो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि प्रोहिबिशन इज अबाउट हायर कोर्ट टेलिंग लोअर कोर्ट एंड नॉट द गवर्नमेंट। तो लोअर कोर्ट कौन से होंगे? लोअर कोर्ट होगा, ट्राइब्यूनल होगा और कॉन्स्टिट्यूटिव अथॉरिटी होगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई संबंध नहीं है। सो even knowing that much information, you would have eliminated option 1 and D, ऑप्शन ए एंड डी। एंड पार्लियामेंट्री तो नहीं है, ये तो डायरेक्टली आउट ऑफ कंटेक्स्ट है।
So this was our second theme from Polity thematic POI की सीरीज। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, अगला थीम आएगा जल्दी। सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम और यूट्यूब को। इसका PDF आई विल अपलोड ऑन टेलीग्राम। जस्ट स्टे ट्यून्ड and join our channel. Thanks.